So today's topic is about Fermi energy, and we will use Fermi Dirac distribution, the topic you might need from your statistical mechanics. Uh, in continuation to the previous lecture, जिसमें हमने potential well consider करके energies निकाली थी. I'm just going to show you what the energy was. Here is the energy. Okay, so इसी एनर्जी को फर्दर प्रोसीड करते हुए हम देखेंगे कि फर्मी एनर्जी लाइक क्या है और किस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, just a review. En, as I showed you, n square pi square h bar square by 2 ml square for the case of your 1D. Of course this n is along uh, x. अगर 3D है तो you have to consider these x, y and z 3 dimensions, which might be the topic of next lecture. uh, let's say कि हमारे पास ये जो n है. Okay, what n actually is indicates that कि uppermost जो like कौन सा orbital filled है. For example, if n is equal to 1, then you are talking about the first orbital, and if n is equal to 2, then it's the first excited state, and if it is the topmost, then you're talking about the uppermost filled energy level. Like उसको हम नाम दे देते हैं कि let's say कि ये NF है. कीप इन माइंड कि ये जो भी अभी तक जो भी हो रहा है, लाइक इसमें टेम्परेचर की बात नहीं की थी हमने. सो यहाँ पे ये जो एन एफ है, द अपर मोस्ट फिल्ड एनर्जी लेवल एट एब्सोल्यूट ज़ीरो. टेम्परेचर मिनिमम होगा एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे. आप देख रहे हैं कि अपर मोस्ट कौन सा फील्ड है, दैट इज सेड टू बी फर्मी लेवल. फॉर दिस लेट्स अस्यूम दैट कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n इवन नंबर है. सो कोई भी तो जो कंडीशन है फर्मी लेवल के लिए 2nf, to determine this nf, 2nf is equal to total number of electrons. और यहाँ जो एनर्जी होगी corresponding to this nf, it must be like it is called Fermi energy. like absolute zero पे जो अपर मोस्ट आपका फील्ड शेल होगा उसकी एनर्जी फर्मी एनर्जी कहलाएगी. So Fermi energy is defined as the energy of the topmost filled level in the ground state of an electron state. What it means कि जो आपके पास एटम है उसका लास्ट शेल एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे फिल्ड है, और वो जो फील्ड स्टेट है वो एक्साइटेड नहीं है, वो उसकी ग्राउंड स्टेट है. लास्ट शेल की भी ग्राउंड स्टेट जो है वो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, उसकी जो एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी कहलाएगी, and it will be denoted by EF. So if this one is energy is EF, then we have to replace these symbols. Let's say यहाँ n EF हो जाएगा तो ये NF हो जाएगा. Okay, so the Fermi energy will be EF is equal to h bar square pi square by 2 ml square NF square. As you know कि NF is given by n over 2, एन एफ इज इक्वल टू एन ओवर टू. तो इसकी जगह आप ये प्लग कर दीजिए एच बार स्केयर बाई 2 ml पाई स्केयर, इसके साथ मिला लें. एन एफ की जगह आप वैल्यू प्लग कर दें एन ओवर टू एन एल स्केयर, ऑफ कोर्स दिस होल स्केयर, राइट. सो ये आपके पास फर्मी एनर्जी होगी. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस के अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर क्या फर्क पड़ता है. To be very precise, because these electrons are fermions,
So they must have to obey the Fermi-Dirac distribution. I will introduce this Fermi-Dirac distribution in next uh, lecture. I will show you कि Fermi-Dirac distribution कहाँ से आती है, like ये itself है क्या, but for the time being, just we are implementing it. You might have studied it from your in your statistical mechanics course, but of course I will show you कि Fermi-Dirac distribution क्या है. Uh, it is applicable to the fermions. What the fermions are? Fermions actually आपके पास spin half particles हैं, like electrons, protons, neutrons. These are spin half particles. Of course, boson or something else for which the spin is an integral multiple, like photon की अगर आप बात करते हैं तो उसकी integral spin है, that is uh, boson, and similarly जो phonons हैं, these are bosons. अब ये फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट लुक एट दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आपके पास फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन है. एफ ई इज गिवन बाय 1 over एक्सपोनेंशियल ई माइनस यू बाय के बी टी प्लस 1. जस्ट नोट दैट कि ये एक्सपोनेंशियल के साथ है और प्लस 1 सेपरेट है. सो ये एक्सपोनेंशियल की पावर में नहीं है प्लस 1. ओके, ये फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन करती क्या है? फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्रोबेबिलिटी देगी ऑफ एन ऑक्युपाइड ऑर्बिटल एट एनर्जी ई, किसी स्पेसिफिक एनर्जी ई पे क्या वो ऑर्बिटल ऑक्युपाइड है या नहीं है. इट विल बी डिटरमिन्ड बाय दिस फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन. As I told you, it is applicable to the fermion, so we are talking about the electron gas. अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ एक फैक्टर आ रहा है टेम्परेचर का भी. टेम्परेचर के चेंज होने से फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या फ़र्क पड़ता है? फर्मी एनर्जी को हमने डिफाइन किया था एट एब्सोल्यूट ज़ीरो. सो टेम्परेचर विल बी ज़ीरो. तो उस वक्त फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? टेम्परेचर अगर चेंज किया जाए तो क्या होगी? ओके, सो यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपको बता देता हूँ. E is the usual energy, where mu is a chemical potential, T is the temperature. Okay, so अब करना ये है कि आपने जो इस mu को, ये mu इस डिस्ट्रीब्यूशन में केमिकल पोटेंशियल ऐसा चूज किया जाएगा कि जिससे आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कह लीजिए, वो हमेशा सम अप होने के बाद एन, टोटल एन ही है. मतलब जो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अस्यूम किए हैं कि अगर एन है तो इट मस्ट कम्स आउट दैट कि इलेक्ट्रॉन आपके पास टोटल नंबर ऑफ एन हो. इन सच अ वे द केमिकल पोटेंशियल मस्ट बी चूजन. केमिकल पोटेंशियल एक ऐसी वैल्यू आपने चूज करनी है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन मिले. राइट, at absolute zero this chemical potential is equal to Fermi energy. अब यहाँ इस ग्राफ में देखें तो इस फंक्शन को चेंज किया गया है, लाइक एफ ई, हाउ इट चेंजेस विद दिस ई एफ. एट एब्सोल्यूट जीरो लेट्स से म्यू इज इक्वल टू ई एफ है, या इवन हम ये वाला फंक्शन जो है इसको हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट करना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन किस तरह से फ्लक्चुएट करता है. सो किसी खास टेम्परेचर पे फॉर द फर्स्ट टाइम लेट्स अस्यूम दैट कि हमारा जो टेम्परेचर है, दिस ब्लू कर्व ओवर हियर is plotted at 600 Kelvin. टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया, E माइनस ई एफ की वैल्यू को चेंज करना शुरू किया और आपने देखा कि जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस तरह से वेरी हो रही है. लुक एट दिस एक्सप्रेशन, लुक एट दिस पॉइंट.
ये वाला जो पॉइंट है आप ये देखें, ये 50% को करस्पॉन्ड कर रहा है। यहाँ पे E माइनस ई एफ की क्या वैल्यू है? 0। E माइनस ई एफ की वैल्यू 0 है और टेम्परेचर आपने 600 चूज़ किया हुआ है। हम देखना चाह रहे हैं कि फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन की क्या वैल्यू आती है। Let's go back to this expression. E minus mu, that is exactly E minus EF, it is 0. अगर ये 0 हो, आप यहाँ पे 0 प्लग करिए तो एक्सपोनेंशियल पावर 0 is equal to 1. So Fermi-Dirac distribution will be 1 over 1 plus 1 या 1/2 आपके पास ये बच जाएगी। जब ये चीज़ 0 होगी तो ये होल फैक्टर Fe is equal to 1/2, which says कि ये आपके पास 50% होगा। ओके अब आप टेम्परेचर को थोड़ा फर्दर चेंज करिए, 300 तक लेके आइए। 300 पे ये कर्व कुछ इस तरह से बन रही है एंड 150 पे ये कर्व कुछ इस तरह से बन रही है। अगर फर्दर आप टेम्परेचर को चेंज करते जाते हैं तो ये कर्व इसी तरह से मॉडिफाई होती जाएगी। यू कैन सी दिस कर्व इन योर टेक्स्ट बुक, तो वहाँ पे ये शो करवाई गई है। ओके अब अगर मैं इस टेम्परेचर को देखूं, टेम्परेचर ये जो है इस एक्सप्रेशन में, इस टेम्परेचर को अगर हम 0 कर देते हैं, इस टेम्परेचर को आप 0 करेंगे तो क्या बनेगा? 1/0 is infinity, exponential power infinity. So exponential power infinity, it will be infinity. 1/infinity is 0. So Fermi-Dirac distribution will be 0. So at absolute 0, ये Fermi-Dirac distribution आपको क्या शो कर रहा है कि 0 होगा। लेकिन हम ये करें, अगर ये एनर्जी जो है ये U इक्वल हो इस म्यू एफ के, at absolute zero when t goes to 0 this function changes, f goes to 0, which shows that कि अगर पहले कोई occupied था ऑर्बिटल, जब फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन की कोई वैल्यू थी, मतलब कि टेम्परेचर 0 नहीं किया हुआ था, तो इसका मतलब ये था कि जो ऑर्बिटल है इट इज समहाउ occupied, राइट? ओके क्योंकि ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन को वैल्यू दे रही है। लेकिन जब आपने 0 किया इसको तो अब आपके पास फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन 0 हो गई। दैट मीन्स कि वो जो ऑर्बिटल है वो फील्ड नहीं है। सो ये केमिकल पोटेंशियल एक ऐसा चूज किया जाए जब ये फर्मी एनर्जी के इक्वल होगा एट एब्सोल्यूट 0, देन यू विल अल्टीमेटली गेट कि आपके पास ये जो लास्ट ऑर्बिटल है, is it a filled or not, but the energy of that orbital is Fermi energy. At absolute 0 Kelvin temperature, mu is equal to this EF, Fermi energy. Energy of the topmost filled orbital at absolute 0 is Fermi energy, right? This was about the definition. मैंने आपको पहले ही शायद ये बता दिया था कि ये इसका एक्सप्रेशन जो है वो ये आ रहा है, राइट? वन मोर थिंग इज के अगर हम ये देखें, लेट्स से कि ये जो क्वांटिटी है E minus mu, it is much greater than this kBt. If it is much greater than kBt, तो एक्सपोनेंशियल की कोई लार्जर वैल्यू होगी जो कि सर्टेनली 1 से तो ग्रेटर होगा। सो अगर ये 1 से ग्रेटर होगा तो आप 1 को इग्नोर कर सकते हैं। बाकी आपके पास जो फंक्शन बचेगा एट गिवन E minus mu much greater than kBt, you will end up with a function f of E is equal to 1 over exponential E minus u by kBt। या फिर इसको आप ऊपर ले आएं तो पावर माइनस हो जाएगी। जब पावर माइनस होगी तो आप यहाँ से एक माइनस कॉमन लेके म्यू माइनस ई ये कर सकते हैं। सो
ये जो फर्मी डेराक डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास बनेगी, it is now goes to when the condition is e minus mu is too much greater than kbt, then you have this distribution which is known as Maxwell distribution, जो इसको Boltzmann distribution भी कहते हैं. So this was all about today. It was a short lecture, and I just wished to introduce these things. In next lecture, I will talk about the free electron gas in a three-dimensional. Maybe इससे पहले मैं आपको फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस कर लूँ कि ये क्या चीज़ है. Okay, if you have any question, as usual, you can ask me in the comment section, or even you can send me the emails. Thank you very much.